اور نوٹیفیکیشن میں تاخیر اور یہ سارے معاملات. پی 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 نے سولنگی صاحب شازیہ مری کا بیان میں نے دیکھا تھا، آپ سے میں نے شیئر بھی کیا تھا، ڈان میں چھپا ہوا تھا. شازیہ صاحبہ نے ان کو شہباز شریف کو کہا ہے کہ لاؤ نا طریقے عدم اعتماد. کیا سیاسی بات ہے یا واقعی میں کچھ ان کی گفت و شنید، کچھ حکمت عملی طے ہو رہی ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز؟ دیکھیں یہ دونوں ہی ہیں، پس منظر میں ایک دوسرے سے دونوں جماعتوں کا رابطہ ہے. میں ان افراد کو جانتا ہوں جو کہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ سامنے نہیں ہیں، وہ پیچھے ہیں. وہ کوئی بہت زیادہ آپ کو اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جیسے شازیہ مری ہے پیپلز پارٹی میں، اسی طرح سے ادھر آپ کو رانا ثناءاللہ نظر آئیں گے. یہ پبلک فیس ہیں. رانا ثناءاللہ نے ابھی پچھلے دنوں ہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 15-20 وہ لوگ جو ہیں، یا کوئی 10-12 لوگ ہی صحیح، وہ ذرا لے آئے پنجاب میں تو ہم تحریک عدم اعتماد کر دیتے ہیں. وہ ذرا نے وہ بندے لے آئے. تو جب یہ معاملہ آئے گا اور جب دونوں جماعتیں اس بات پر تیار ہوں گی اور جب وہ موسم آئے گا اور خوشبو کی ہوائیں چلیں گی تو وہ یہ کر لیں گے. ابھی وہ ہوا نہیں چلی، ابھی گفتگو ہو رہی ہے. تو گفتگو صرف تخت لاہور کے بارے میں نہیں ہوگی، وہ تخت اسلام آباد کے بارے میں بھی ہوگی. ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ دونوں جماعتیں اور اپوزیشن اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے یا نہیں، لیکن گفتگو ہو رہی ہے. کوئٹہ کی جو یخبستہ ہوائیں ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کب پہنچتی ہیں ادھر. جی سہروردی صاحب، آپ بتائیے اس کے اوپر کیا یہ طریقے عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے، جس دن ایم کیو ایم یہ اعلان کر دے گی کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہی ہے اور اس دن عدم اعتماد فلوٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کچھ جی انہوں نے اعلان تو کچھ تھوڑا بہت کیا میرے خیال سے، اشارے دیے ہیں، ابھی انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا ہے، کیو لیگ نے بھی کیا ہے. لیکن اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اشارہ ہو. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اشارہ کریں تاکہ ہماری جگہ بنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن حکومت کی اتحادی ایک بڑی جماعت ٹوٹ کر حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی اور اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، نمبر گیم پوری ہو جائے گی. نہ نون اس عدم اعتماد کو روک سکے گی، نہ پیپلز پارٹی روک سکے گی، کیونکہ ووٹ پورے ہو جائیں گے. جب ووٹ پورے ہو جائیں گے تو ہر بندہ کہے گا جب آپ کے ووٹ پورے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. لوگ گریبان کو آ جائیں گے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ روک نہیں سکے گی جب حکومت کی اتحادی کوئی جماعت ٹوٹ جائے گی. اس سے پہلے اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے. دیکھیں نا پنجاب میں بھی اگر چودھریز ٹوٹ جائیں، کاف لیگ کہے کہ ہم علیحدہ ہو رہے ہیں مرکز سے اور پنجاب سے، تو سب سوال کرنے لگ جائیں گے کہ جی اعتماد وہ اکثریت ختم ہو گئی ہے. جب مرکز میں ایم کیو ایم ٹوٹ جائے یا اور جی ڈی اے ٹوٹ جائے یا اور کوئی، تو سب کہیں گے کہ ٹوٹ گئے ہیں تو اب بات کر لیں. میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اب یہ باپ پارٹی جو ٹوٹی ہے 2 حصوں میں، اس کا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیا ایفیکٹ آئے گا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. کیا واقعی وہاں بھی 2 حصوں میں، دیکھیں نا آخری وقت تک 14-15 لوگ جام کمال کے ساتھ کھڑے تو رہے نا، تو مرکز میں کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سینٹ میں کیا ہوگا. اور مجھے بہت قوی امید ہے کہ صادق سنجرانی پہلے جائیں گے. نہ مرکز میں آئے گی نہ پنجاب میں آئے گی، پہلے سینٹ میں آئے گی. اور بیلنس آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا جس دن جس کی سینٹ میں اکثریت ہے اس کا چیئرمین سینٹ آ جائے گا اور اپوزیشن کا، تو یہ پارلیمنٹ کم از کم سینٹ فنکشنل ہو جائے گی. ابھی تو یہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو تالے لگا لیتے ہیں نا، پھر سینٹ کو تالا نہیں لگ سکے گا نا، اور وہاں بات ہوگی، وہاں قراردادیں پاس ہوں گی، وہاں سے بل ریجیکٹ ہوں گے، وہاں بہت پرو ایکٹیو جو ہے ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری سیاست شروع ہو جائے گی. میرے خیال میں پہلے حصے میں شاید صادق سنجرانی صاحب کا نمبر آئے کیونکہ وہ جام کمال صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اینڈ تک اور شاید انہیں اب جانا ہو. اس کے بعد میں میرے خیال میں مرکز ہوگا، پھر پنجاب. جی میری اطلاعات یہ ہیں کہ جام کمال کا اثر اتارنے میں پرویز خٹک اور صادق سنجرانی پیش تھے. تو جام کمال کسی طور پہ بھی صادق سنجرانی سے خوش نہیں ہوں گے کیونکہ صادق سنجرانی نے بٹھایا ہے قدوس بزنجو کو. اچھا تو یہ ہاں انہوں نے بٹھایا ہے. اور یہ سولنگی صاحب تھوڑا بلوچستان پہ بھی بات ہو جائے اسی ساتھ ساتھ کہ وہاں پہ اب یہ جو تبدیلی ہے وہ وہاں جو ارکان پارلیمنٹ مسنگ تھے نا 4،
जिसने वो जो मिसिंग पर्सन्स थे वो जिसने बरामद कराए हैं, गेम उसने चेंज की है। अगर वो मंडे तक मिसिंग रहते तो जाम कमाल ने 2 वोट और तो एक तो दम दरूद कराने के लिए पहले दिन ही लेट आया था और 33 थे जिस दिन अदम एतमाद पेश हुई। एक वोट भी जाम कमाल तोड़ लेते तो वो अदम एतमाद नाकाम हो जाती और बड़ी फ्रेजाइल खड़ी थी। लेकिन वो जो 4 लोग मिसिंग पर्सन बरामद हुए और उन्होंने कहा, किसी ने कहा इयादत करने आया था, किसी ने कहा शॉपिंग करने आई हुई थी, किसी ने कहा, और सबके मोबाइल बंद थे। वो जिसने मिसिंग पर्सन बरामद करा के वापस भिजवाए हैं ना, जाम कमाल उसी से गिला कर रहे हैं। जी, वो जो 4 अफराद थे उन्होंने ऐलान किया कि हम अब्दुल कुद्दूस बिजनजो के साथ हैं। तो अब आप बात समझ जाएं कि अब्दुल कुद्दूस बिजनजो और वो जो 4 अफराद और नहीं, वो थे तो बिजनजो के साथ थे, लेकिन अगर वो उस दिन पेश ना होते तो उसका फायदा जाम कमाल को था। उनके मिसिंग रहने का फायदा जाम कमाल को था, क्योंकि ऑपोजिशन ने अपने नंबर पूरे करने थे। अगर वो 4 गायब रहते तो फिर जाम कमाल ने सिर्फ 2 ही वोट तोड़ने थे उस अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए, जो पॉसिबल था। लेकिन इन 4 का सैटरडे शाम को कोयटा पहुंच जाने से जाम कमाल के लिए वो फिगर 7-8 पे पहुंच गया। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो कौन था उनके पीछे जो ये बंदों को इधर उधर करने की, ये भी बता देना। नहीं, बाजियाब किसने करवाया ये बता। हाँ। नहीं, मिसिंग किसने कराया? नहीं, किसने बाजियाब कराया? जो जुर्म बाजियाब कराना है या मिसिंग करना है? नहीं, देखिए जुर्म तो कोई भी नहीं है। जुर्म तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इस तरह के जराइम इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि अब उनको जुर्म कहना भी जुर्म लफ्ज की जो है मजाक उड़ाने के मुतरादिफ होता है। बहरहाल तो ये ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कभी एमक्यूएम की बात करें तो मेरा भी एक सोर्स जो है कराची में, वो मुझे कई दिनों से ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम में ये सारी बात बड़ी तफसीली उस पर गुफ्तगू भी हुई है। फिर आपने देखा जो उन्होंने नॉइज दी, उन्होंने नोटिस वगैरह भी दिया, और वो बिल्कुल उस मूड में है, बैठे हुए हैं और मुंतजिर हैं इशारे के कि कब जो है वो उनको ग्रीन सिग्नल मिले और कब वो छलांग लगाकर कश्ती से, डूबती हुई कश्ती से बाहर अपने आप को साहिल पर बचा लें। जी जैगम साहब, आप ये सुन रहे हैं कलाबाजियां, बाजियाबियां और अगवा साजियां। ये बताइए कि क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? आर वी एंटरिंग बैक इनटू छांगा मांगा और वो जो बाद में हॉर्स ट्रेडिंग वाले जो मामलात हुए थे, या ये होगा ही नहीं? आपकी क्या राय क्या है? रजा, एक तो मैं बड़ा गौर कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि जाम कमाल साहब में कुद्दूस बिजनजो में फर्क क्या है। वो कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। मतलब ये जो है बाप के बच्चों की अपने घर की लड़ाई है, घर का मामला है, और वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। और जो कुद्दूस साहब हैं वो आपको पता है वो बाप के और भी ज्यादा, बाप पार्टी के और भी ज्यादा फर्मा बरदार हैं। कमाल साहब तो फिर भी क्योंकि अपनी उनकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है, पॉलिटिकल हैवी वेट फैमिली से वो ताल्लुक रखते हैं, अपना कोई वेट असर्ट कर सकते हैं। कुद्दूस बिजनजो तो बिल्कुल एक नो बॉडी है, वो तो इमर्ज ही इस बाप की वजह से हुए हैं, इसके अलावा तो कोई उनकी पोजीशन नहीं है। वो तो और भी ज्यादा बिहोल्डन होंगे उन पास के, जिन पास ने जो है वो बीएपी को बनाया था। सिर्फ एक फर्क हो सकता है कि अगर जाम कमाल साहब का कोई करीबी ताल्लुक पीटीआई से था, वो आप तो बेहतर कह सकते हैं, तो वो थोड़ा सा और कमजोर हो जाएगा और उसकी जो इम्प्लीकेशन सेनेट में हो सकती हैं, यानी बीए पार्टी जिनके जेर असर है, तो सेनेट में जो बीए पार्टी के बलूचिस्तान के वोट हैं वो ज्यादा डायरेक्टली उनके असर होंगे और बलूचिस्तान के वोटों पर पीटीआई का जो असर है वो कम होगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जो बलूचिस्तान के सेनेट में वोटर्स हैं वो अपोजिशन के हाथ में बराह रास्त आ जाएंगे या वो अपोजिशन के साथ पींगे बढ़ाएंगे, अनलेस कि उनको कहा जाए, उनको हुक्म दिया जाए, बताया जाए, मार्चिंग ऑर्डर दिए जाएं, विसल बजाई जाए, तो फिर तो ऐसा हो सकता है। उसके बगैर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कोई उनकी बहुत ज्यादा हमदर्दियां जो हैं वो अपोजिशन के साथ होंगी। बाकी रही हुकूमत को इन हाउस चेंज करने की बात, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस वक्त अपोजिशन को इन हाउस चेंज करके क्या मिलेगा। इस डूबती नाव को, जिसमें 2 साल में अगले इलेक्शन तक का जो पीरियड है उसमें बेहतरी के कोई आसार नहीं है, एक खौफनाक बुहरान जिसमें हम आ गए हैं और जिसकी तरफ धकेल दिया गया है, और जहां पे हम आके पहुंचे हैं इस चट्टान के इस किनारे पे,
अगले 2 साल तो पलटने की कोई सूरत ही नहीं है। थोड़ी बहुत अगर मैक्रो इकोनॉमी आपकी, यानी जो बड़ी रियासती इकोनॉमी है, वो कहीं बुरी भली कोई 6 महीने साल के बाद संभल भी जाए, तो जो अवाम की मईशत है, अवाम के जो दुख हैं, वो तो 3-4 साल से पहले उनमें बेहतरी के कोई आसार नहीं है। तो कोई पागल ही पार्टी होगी जो इस वक्त पंजाब के सूबे में या मरकज में कहेगी कि हाँ जी 1.5 साल के लिए मुझे थमा दो। 1.5 साल के लिए थमाने का तो मतलब ये है कि 1.5 साल बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान साहब मजलूम बन के और जो कुछ वो करके गए हैं 3.5 साल पाकिस्तान के साथ, उसके साथ दामन झाड़ के वो कहेंगे जी मैं तो बस जो 1.5 साल बाकी थे उसमें मैं वो इनकलाब लाने ही वाला था। पाकिस्तान को मैंने उठा के जो है वो जहाज में रख दिया था। इन 1.5 साल में मैंने जो है वो नॉर्वे के पास जाके पाकिस्तान को रख देना था, और जो मेरा वादा था उसके मुताबिक पाकिस्तान को मैंने अगले 1.5 साल में तरक्की याफ्ता मुल्क बना देना था। ये तो उन्होंने उतार दिया। तो वो तो सारे इस बात से फ्री हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इट डज नॉट मेक एनी पॉलिटिकल सेंस अगर कोई बड़ी जमात है कि वो इन हाउस तब्दीली करके इस वक्त हुकूमत में आ जाए। जी, उनको यही वारे खाता है इलेक्शन की तरफ जाए। इस तरह के कोई इरादे नहीं है। अगर अपोजिशन बलूचिस्तान में भी जो करेगी वो यही करेगी कि इन्हीं को कहेगी कि आप हुकूमत बनाएं और उन पर दबाव बरकरार रखेगी। लाहौर में भी अगर कोई तब्दीली आती है तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग उसके लिए तैयार होगी, ना इस्लामाबाद में। वो तब्दीली इन्हीं के अंदर आएगी। उसका मतलब और मकसद इस हुकूमत को मजीद कमजोर करना और उनके जो आगे मैस्काट है वो तब्दील कराना होगा। जयगम साहब तो परवेज घाट तो आपने जो शेरवानियां सिलाई हैं उनके तो साइज ही खराब करने लगे हुए हैं। जयगम साहब ने उम्मीदों में पानी फेर दिया और ये भी होगा कि इन हुकूमतों को कमजोर करके इन पर दबाव डालकर मजबूर किया जाए कि आप इलेक्शन में जाएं। इसके अलावा और इसका कोई मकसद भी होगा। लेकिन मैं आपको जैसे अभी बलूचिस्तान में JUI वजारतें तो नहीं लेगी मेरे ख्याल नहीं लेगी। मैं आपको एक खबर दे दूं कि जिस तरीके से हमारे करम फरमाओ ने बाप बनाई थी, तो कुछ लोग जो है तजुर्बात से तंग नहीं होते, बोर नहीं होते। वो सोच रहे हैं कि अब बाप को जो है जरा मुल्की सतह पर बढ़ाया जाए, B से P तक आ जाए और ये बाप से पाप बन जाए। तो बाप के करिश्मे तो हमने देखे हैं, पाप जो है वो कैसा पापी होगा उसका तजुर्बा जो है वो जरा देखने के लिए तैयार हो जाए। देखिए ये मैं सिर्फ मैं जैगम साहब आप जो बात पहले कहते हैं ना, देखिए ऑपोजिशन के 22 मेंबरान हैं जो कि इस तरीके अदम एतमाद जो है वो जो उन्होंने पेश की थी, और वो वही चक्कर है कि बुनियादी तौर पर कि जैसे ये कहा गया कि वो अपोजिशन इस वक्त नहीं लेना चाहती। लेकिन आपका मैं पॉइंट में मैं रिस्पॉन्ड ये करना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से कोई भी जी होश पार्टी या लीडर जो है इन हालात में वो अपने सर मुसीबत ही रहने वाली बात है, बदनामी बोलने वाली बात है। मगर मसला यहाँ पर उससे ज्यादा गहरा है, और उसका आपने जिक्र पहले वन पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ जो आपने इशारा दिया, क्योंकि अगला जो इलेक्शन है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की इरादे और इस तरह की एक जो फेयर गेम या लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मुहैया होगी तो फिर अपोजिशन कैसे इलेक्शन में जा सकती है। क्योंकि अभी तो कराइन यही बताते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट इस बार जो है वो पीछे ही रहेगी या हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गया है। तो इस बार वो कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से एक नाकाम एक्सपेरिमेंट को ना दोबारा दोहराएं। इस वजह से शायद ये कुछ इन हाउस तब्दीली का हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो। रजा, ये जो इलेक्शन कमीशन को आग लगाने वाले थे ना, वो कल पेश हो रहे हैं। आजम स्वाति को इलेक्शन कमीशन कल बुलाया गया है, और परसों जो है वो फवाद चौधरी साहब जो के कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का माउथ पीस है, उनको परसों बुलाया है। तो अब देखते हैं कि वहां पर वो कितनी बहादुरी के साथ जो है वो अपने मौक़िफ़ को का दिफा करते हैं। बिल्कुल, तो ये बात है। अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि देखिए तरीन ग्रुप जो है वो भी शामिल है इस पूरी चीज में। अच्छा, आखिर में ये जो
मोहम्मद शामी के ऊपर जो हिंदुत्वा ने एक अटैक जारी रखा है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ले क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि उसके ऊपर पूरा एक सोशल मीडिया पे स्टॉर्म बना हुआ है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी आप कमेंट कर दें जैगम साहब। मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ और मैं समझता हूँ क्रिकेट साउथ एशिया की अफयून है। उसकी मिसाल मैंने आपको अभी दे दी कि मुल्क में आग लगी हुई है, मुल्क में यहाँ आग लगी हुई है, रियासत का कबाड़ा हो गया है और हम क्रिकेट का जश्न मना रहे हैं। तो क्रिकेट किस तरह की अफयून है उसकी मिसाल सामने है। तो मुझे पता नहीं है मोहम्मद शामी कौन है और बिल्कुल मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं पास आज राहुल गांधी साहब ने शामी के हक में बयान जारी किया है और सचिन तेंदुलकर ने भी शामी के हक में बात की है। और मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर से भी कुछ जो संजीदा आवाजें हैं वो शामी के हक में आई हैं। ये ठीक है कि जो जैसे हमारे यहाँ टीएलपी है या कुछ वहाँ जो हिंदुत्व के लोग हैं और जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने शामी को बहुत टारगेट किया है और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। देखिए ना, हमने फुटबॉल में भी देखा है ऐसी चीजें, ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान भी देखी हैं, जब ब्लैक प्लेयर्स की कारकर्दगी पर बात की गई इंग्लैंड में और ये और वो, तो जब कहा गया ब्लैक लाइव्स मैटर और ब्लैक फुटबॉलर्स के साथ इजहार यकजहती की गई। और मैं समझता हूँ कि ये जब सचिन तेंदुलकर को छक्का मारा था जावेद मियांदाद ने, तो उसके बाद मैंने चेतन शर्मा का एक इंटरव्यू सुना था, क्योंकि वो शर्मा जी को छक्का पड़ा था। तो शर्मा जी ने कहा मैं 6 महीने घर से नहीं निकल सका था और अगर मैं किसी हजाम के पास दाढ़ी कटाने जाता था तो वो भी मुझे कोसने लग जाता था। तो एक तो पाकिस्तान इंडिया का सेंटीमेंट भी है, शायद शामी ने किसी और टीम के साथ ने ऐसी परफॉर्मेंस की होती तो ना वो पाकिस्तान के हवाले से सेंटीमेंट भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा जो है वो अब एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी और वहाँ की माइनॉरिटीज के लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ भी कोई हालात मुख्तलिफ नहीं है कि हम कहें कि वो हमारी तरफ देख लें तो हम कौन सा अच्छा सलूक कर रहे हैं। जी, आपने क्रिकेट की बात की, आपने देखा तो होगा कि हमारी काबीना के मेंबरान जो हैं उन्होंने भी माशाल्लाह क्रिकेट जो है वो सबने मिलकर उन्होंने कहा ये आलम इस्लाम की फतह है। वो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं ये आलम इस्लाम की फतह है जो हमने मैच जीता है। जी टीएलपी की फतह आलम इस्लाम की फतह नहीं है, तहरीक लब्बैक की फतह आलम इस्लाम की फतह नहीं है, ये क्रिकेट की फतह आलम इस्लाम की फतह है। इस्लाम का झंडा तो उन्होंने उठाया हुआ है। इंटीरियर मिनिस्टर वीडियो चलाएं शेख रशीद साहब की, सुने ना जरा। क्यों ना हम एग्जैक्ट उनके जो वर्ड्स हैं उन पे गौर करें, फिर हम आपको इमेजेस भी दिखाएंगे खान साहब के वहां पे सब। यार इनके कौन कौन से क्लिप चलाएंगे, वो भी चलाए ना जिसमें उसने कहा है सुने, ये सुन लीजिए जरा। अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे सिर्फ ठन नहीं कहा, लाल हवेली यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। जी लाल हवेली यूनिवर्सिटी, जैसे वो शेख रशीद का वो भी चला है ना क्लिप जिसमें वो कहता है कि टीएलपी को हमने बैन नहीं किया, कलअदम किया है। या वाह, तारीखी क्लिप्स हैं। तो जनाब ये बिल्कुल मेरे ख्याल से इसकी मजम्मत होनी चाहिए और ये इस तरह से ये एक क्रिकेट मैच को आलम इस्लाम की फतह या उधर हिंदुत्व जो है वो उसको देखें, मैं भी क्रिकेट नहीं देखता और अफसोस की बात है। और क्रिकेट एक और भी चीज है जो आवाजें देती है, उससे मुझे हमदर्दी जरूर है। लेकिन बात यह है कि कल ये जो क्लिप्स हमने देखे कि क्रिकेट के मैदान में जब वो खत्म हुआ तो जिस तरीके से दोनों टीमों के जो कैप्टन और प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ बर्ताव किया, उससे तो ये लगता था कि दोनों टीमें जीत गई हैं। लेकिन हमारे जो तमाशबीन और सियासतदान हैं वो बिल्कुल उसके मुखालिफ सोचते हैं। वो समझते हैं कि ये जंग लड़ रहे थे, जो कोई जंग जो है वो हम जीत गए। जी बिल्कुल। और वो हमारी वजीर आजम साहब जो हैं वो और शाह महमूद उन्होंने भी तबर्रा किया आज। वो अजीब, वो सारे कल वो वहां पे सऊदी अरेबिया में जहां मेरे ख्याल से
وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے اس کمرے میں وہ اکٹھے میچ بھی دیکھ رہے تھے اور وہ اس کے اوپر بڑی لے دے بھی ہوئی ٹویٹر کے اوپر, جیسے انہوں نے کہا زیغم صاحب نے کہ ملک میں بڑے بڑے مسائل ہیں, آگ لگی ہوئی ہے, اور ادھر جو ہے. بہرحال یہ میرے خیال سے ہم نے آج کے تمام موضوعات کور کر دیے, اور یہ اب آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ابھی وہاں سے ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے امپروو ہوں, تو وہ انہوں نے خان صاحب انہوں نے اس کہا کو کہ کہہ ابھی دیا ہم کہ نے ابھی کل ان کی پٹائی کی ہے تو ابھی ان سے بات, وہ ہم سے بات نہیں کریں گے, یہ تو فرمایا. یہ جو سپورٹس کا جو غیر معمولی استعمال ہے سیاست کے لیے, پالیسی کے لیے, پبلک پالیسی کے لیے, میرے خیال سے یہ بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. اور صرف خان صاحب نے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان دونوں جگہ پر اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفسس ہے. بہرحال آج کی گفتگو کا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف تو ریاست نے پھر ایک جیسے زغم صاحب نے کہا کہ وہ قوتیں جو جمہوری اور عدم تشدد کی سیاست میں یقین رکھتی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جا رہا ہے, اور اس کے برعکس وہ قوتیں جو کہ تشدد سے نہیں چکتی ان کو نہ صرف بڑھاوا دیا جاتا ہے بلکہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے ہر سٹیپ کے اوپر, اور اسی لیے وجہ ان کی پاور جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اور اگر آج کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, اپوزیشن پارٹیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اپوزیشن بامقابلہ پی ٹی آئی جو کچھ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ جو ہو رہا ہے, تو اس پوری انارکی میں اس طرح کی جو قوتیں ہیں وہ یہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ماحول ہوتا ہے پنپنے کا. تاریخ یہی بتاتی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کی پالیسیاں بناتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی کچھ غور کریں, کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے غور کیا ہوتا تو آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا, لیکن کبھی بھی ممکن ہے اپنے کورس کریکشن کا اور ریورسل کا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو ہے اس کے اوپر کان دھرے گی. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.